Hello everyone, welcome to SPM Maths Academy. Today we are going to analyze the Assam Tribune newspaper of 11th June 2020. Please note that Satyajit sir is not well today, so he will not be able to do the analysis today. As soon as he gets well, he will be back with the daily newspaper analysis. Please note that you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online platform online.spmisacademy.com where you can access to some of our free online classes. You can also join our WhatsApp group through the link in the description section for more study material. So this is the list of the topics that we are going to discuss today. The first topic is taken from the international segment, which reads IITG 478th in QS World University Rankings 2021. This topic is important from our syllabus paper 3 governance and subtopic education, and this topic is also important from our prelims point of view. So first let us have a look at the news. न्यूज़ क्या बोलता है वो पहले हम लोग देख लेते हैं. So Indian Institute of Technology Guwahati IITG has been ranked 470th globally in the QS World University Rankings 2021. So ये जो QS World University Rankings 2021 पब्लिश किया गया है उसमें Indian Institute of Technology Guwahati has secured 470th रैंकिंग ग्लोबली. इसमें टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ का एक लिस्ट वो लोग पब्लिश किए हैं. यहाँ पे आईआईटी गुवाहाटी का रैंक है 470. अभी यही रैंक लास्ट ईयर जो था वो था 491. दैट मीन्स इन द 2020 एडिशन ऑफ द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स द रैंक ऑफ आईआईटी गुवाहाटी वाज 491. सो इस बार ये रैंकिंग जो है ये इम्प्रूव हुआ है. देयर इज़ एन इम्प्रूवमेंट ऑफ 21 प्लेसेस बाय दिस इंस्टीट्यूट, राइट. तो लास्ट ईयर 491 था, इस साल ये इम्प्रूव होके 470 हो गया है. अभी ये जो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है यहाँ पे इंडिया का टोटल 21 यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, राइट. जो ये जो टॉप वर्ल्ड के टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें इंडिया के 21 यूनिवर्सिटीज़ के नाम है. और वो जो 21 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के जो 21 यूनिवर्सिटीज़ के नाम इंक्लूड किया गया है इस लिस्ट में, उसमें आईआईटी गुवाहाटी का नाम 8वें नंबर पे आता है, राइट. सो अगर हम लोग अमॉन्ग द यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम इंडिया विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2021, IITG has secured the rank of 8, right. तो IIT गुवाहाटी का रैंक इंडिया की यूनिवर्सिटी के बीच में IIT गुवाहाटी का रैंक होता है 8th, राइट. यहाँ पे भी IIT गुवाहाटी हैज़ इम्प्रूव्ड फ्रॉम लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर अमॉन्ग द इंडियन यूनिवर्सिटीज़ द रैंक ऑफ IIT गुवाहाटी वाज 10. तो लास्ट ईयर में इंडिया के जो यूनिवर्सिटीज़ थे उनमें से IIT गुवाहाटी को 10th रैंक मिला था. दिस ईयर ये इम्प्रूव होके 8th हो गया है. नाउ हियर आई हैव गिवन अ लिस्ट ऑफ top 20 universities of the world according to the QS World University Rankings. Obviously, you don't have to remember the names of all these universities. However, you should remember the name of the university which has secured the first rank in the QS World University Rankings 2021, and that is Massachusetts Institute of Technology, that is MIT, which is in USA. So MIT USA has secured the first rank in QS World University Rankings 2021. Now if we talk about the top universities of India, as I have already mentioned, only 21 universities of India made place in top 1000. तो वर्ल्ड के टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया के बस 21 यूनिवर्सिटीज़ का नाम आया है. नाउ दिस इज़ अ वेरी बैड साइन फॉर इंडिया, राइट. क्योंकि इसका मतलब यह है कि जो इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ है, these universities are not being able to compete with the top universities of the world. और ये जो 21 यूनिवर्सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है उसमें से भी there are only 3 universities of India which have succeeded in making their position among the top 200 universities of the world, right. बाकी सब बहुत पीछे है.
देयर आर ओनली 3 यूनिवर्सिटीज़ जो टॉप 200 में आते हैं. So amongst Indian universities, IIT Bombay is based ranked at 172, followed by Indian Institute of Science Bangalore on 185. इसके अलावा there is Indian Institute of Technology Delhi which has secured the rank of 193. तो ये IIT Bombay, IISc Bangalore and IIT Delhi ये 3 ही यूनिवर्सिटीज़ है जो टॉप 200 में आता है. बाकी जो आपका 18 यूनिवर्सिटीज़ है उसका रैंक बहुत पीछे है. सो दिस इज इंडीड अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया. लेट अस हैव अ लुक एट सम ऑफ द फैक्ट्स अबाउट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स. So QS World University Rankings is an annual publication of university rankings by Quacquarelli Simond. ये जो Quacquarelli Simond है, इट इज़ एन एजुकेशनल नेटवर्क कंपनी. ये एक ब्रिटिश कंपनी है स्पेशलाइजिंग इन द एनालिसिस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड, राइट. तो वो लोग जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है उनको एनालाइज करते हैं, सर्वे करते हैं और उसके बाद ये जो रैंकिंग है ये वो लोग पब्लिश करते हैं. और ये जो रैंकिंग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स है ये हर साल पब्लिश किया जाता है, राइट. सो इट इज़ एन एनुअल पब्लिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स. The QS World University Rankings 2021 are based on 6 metrics. तो ये जो वो लोग रैंकिंग्स जो देते हैं, जो पब्लिश करते हैं, इसको बनाने में वो लोग 6 अलग अलग फैक्टर्स कंसिडर करते हैं. एक हो गया एकेडमिक रेपुटेशन, राइट. वो जो इंस्टीट्यूट है उसका एकेडमिक रेपुटेशन कैसा है, मतलब डिग्री ऑफ एक्सीलेंस उसका कैसा है. देन दे ऑल्सो कंसिडर एम्प्लॉयर्स रेपुटेशन, मतलब वो जो यूनिवर्सिटी है, वो जो इंस्टीट्यूशन है, उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग जब कहीं पे जाते हैं, दूसरा कोई कंपनी में हो गया या ऑर्गेनाइजेशन में जब वो लोग काम करते हैं, तो वो जो उनके जो एम्प्लॉयर्स है, जो लोग वहाँ से रिक्रूट करते हैं, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से या यूनिवर्सिटी से जो लोग रिक्रूट करते हैं, वो एम्प्लॉयर्स क्या बोलते हैं उस इंस्टीट्यूट के बारे में, राइट. तो वहाँ से उस यूनिवर्सिटी से जो रिक्रूट करके वो लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयर्स जो स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं उन लोगों का कैसा कॉम्पिटेंसी है, राइट. सो ये सब सर्वे करके भी वो लोग ये रैंकिंग देते हैं. तो ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है इसको बनाने में ये एम्प्लॉयर्स रेपुटेशन भी कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द फैक्टर्स. कि जो रिक्रूटर्स है या एम्प्लॉयर्स है वो लोग ये इंस्टीट्यूशन के बारे में, ये इंस्टीट्यूशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, इसको भी कंसीडर किया जाता है. देन अनदर फैक्टर वाज फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, राइट. फैकल्टी और स्टूडेंट का क्या रेशियो है. फॉर एग्जांपल पर 1000 स्टूडेंट कितना टीचर्स है, कितना फैकल्टी है, राइट. तो उसको भी कंसिडर किया जाता है. देन दे ऑल्सो कंसिडर साइटेशन पर फैकल्टी, मतलब रिसर्च आउटपुट कैसा है, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से कितना वहाँ पे रिसर्च हो रहा है, कितना पेपर पब्लिश हो रहा है, कितना इनोवेटिव रिसर्च वो लोग कर रहे हैं, तो इसको भी कंसिडर किया जाता है. देन अनदर फैक्टर विच इज़ कंसिडर्ड इज़ इंटरनेशनल फैकल्टी, वहाँ पे कितना इंटरनेशनल फैकल्टी है एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, राइट. वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कितना है. सो दीज आर द 6 metrics which are considered, which are on which this ranking is based, right. Our next topic is taken from environment segment. It reads Asiatic Lion Census 2020. It is important from our syllabus paper 4 environment and it is also important from our prelims point of view. ये जो एशियाटिक लायंस है अनटिल द 19th सेंचुरी इंडिया के अलावा सऊदी अरबिया, ईस्टर्न टर्की, ईरान, मेसोपोटामिया, ये सभी जगह में ये एशियाटिक लायंस पाया जाता था. लेकिन अभी ये जो एशियाटिक लायंस है ये बस आपका गुजरात का गिर नेशनल पार्क में ही पाया जाता है. तो इनका पॉपुलेशन अभी बहुत कम हो गया है. दैट इज़ वाई इट इज़ लिस्टेड एज एंडेंजर्ड अंडर द IUCN रेड लिस्ट. ये IUCN रेड लिस्ट के बारे में आई होप कि आप लोग पढ़े होंगे. न्यूज़पेपर एनालिसिस, पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में ये आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है.
ये जो IUCN रेड लिस्ट है, इट इवेलुएट्स द एक्सटिंक्शन रिस्क टू डिफरेंट स्पेसीज, राइट। जो रिस्क एक्सटिंक्शन का कैसा रिस्क है पर्टिकुलर एक स्पेसीज का, उसको इवेलुएट किया जाता है। और ये जो IUCN रेड लिस्ट है, यहाँ पे अलग अलग कंजर्वेशन स्टेटस दिया जाता है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज होता है। फॉर एग्जांपल कुछ स्पेसीज उनका स्टेटस एक्सटिंक्ट है, मतलब वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। देन देयर आर सम स्पेसीज विच आर गिवन द स्टेटस ऑफ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। कुछ कुछ एनिमल को एंडेंजर्ड स्टेटस दिया जाता है। देन देयर आर सम वल्नरेबल स्पेसीज, राइट। तो ऐसे IUCN के जो रेड लिस्ट है, वहाँ पे अलग अलग स्टेटस या अलग अलग कैटेगरीज ऐसा रहता है। और एशियाटिक लायंस को IUCN रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। एंडेंजर्ड स्टेटस इसको दिया गया है। इट मीन्स देयर इज़ अ वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ दिस स्पेसीज, राइट। ये स्पेसीज का जो रिस्क है एक्सटिंक्शन का, वो बहुत हाई है। देन इट इज़ लिस्टेड इन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सो ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था 1972 में, उसके अंडर कुछ शेड्यूल्स है, राइट। शेड्यूल ऑफ प्रोटेक्टेड प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज। और ये जो शेड्यूल में ये जो प्रोटेक्टेड प्लांट एंड एनिमल है, इनका हार्वेस्टिंग करना या हंटिंग करना, इट वाज लीगली आउटलॉड, राइट। इसको हंटिंग नहीं कर सकते हैं ये सब स्पेसीज के। सो ऐसा टोटल 6 शेड्यूल्स है इस एक्ट के अंदर। देयर आर 6 शेड्यूल्स विच गिव वेरियस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। शेड्यूल 1 में हो गया तो उसको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन मिलेगा। ये शेड्यूल 1 में जो स्पेसीज है, उसका अगर कोई हंटिंग करता है तो उसका अगर कोई शिकार करता है तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पेनल्टी रखा जाएगा। शेड्यूल 2 में जो पेनल्टीज होगा वो थोड़ा कम होगा। तो इस तरीके से देयर आर डिफरेंट शेड्यूल्स, देयर आर 6 शेड्यूल्स विच गिव वेरियस डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन। शेड्यूल 1 में जो स्पेसीज है उसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है, राइट। और ये जो एशियाटिक लायन है, इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। And this Asiatic lion was also known as the Indian lion and the Persian lion. Now that was about the Asiatic lions. Now ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ है about Asiatic lion census 2020, right? तो Asiatic lion census 2020 रिपोर्ट आ गया है। और ये जो सेंसस है, सेंसस ऑफ एशियाटिक लायन, इट इज़ कंडक्टेड एवरी 5 years। हर 5 साल में एक बार ये सेंसस किया जाता है। एंड दिस इज़ कंडक्टेड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और इस साल इन 2020 वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन द सेंसस। ये जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इट इज़ एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो चलिए देखते हैं ये 2020 एशियाटिक लायन सेंसस का क्या रिजल्ट आया। The population of the Pride of Gujarat, the Asiatic lion, has increased from 523 in 2015 to 674 in 2020. So you see an increase in the population of this Asiatic lion has been observed, right? तो ये 2020 Asiatic lion census के बाद ये जो पॉपुलेशन है, देखा गया है कि इनका जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो 2015 में जो सेंसस हुआ था, वहाँ पे देखा गया था कि इनका पॉपुलेशन था 523। नाउ इट इज़ इंक्रीज टू 674 इन 2020। एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन, ये जो सेंसस है 5 साल में एक बार किया जाता है, राइट। तो लास्ट जो सेंसस हुआ था वो 2015 में हुआ था, 5 साल पहले। तो ये 5 साल में ये जो पॉपुलेशन है 29% बढ़ गया है। नाउ अभी अगर आप ये पिक्चर में देखेंगे तो यू विल नोटिस अ पॉजिटिव ट्रेंड इन द पॉपुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेसीज, राइट। ये जो एशियाटिक लायंस है, इनका पॉपुलेशन 1990 से ग्रेजुअली ये बढ़ता जा रहा है। तो वी कैन से दैट वी हैव सक्सीडेड इन गिविंग प्रोटेक्शन टू दिस पर्टिकुलर स्पेसीज। और इस बार भी हम लोगों को जो सेंसस के बाद जो रिज़ल्ट आया, उसमें हम लोगों को जानने को मिला कि 2015 के बाद देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 29% इन द पॉपुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पेसीज। Our next topic is taken from the Assam segment. It is community transmission in Assam. It is important for our syllabus paper 6, Assam governance, and subtopic health. Now let us have a look at the news.
Health Minister Himanta Biswa Sarma today said at least 13 positive cases have been reported from the community in Guwahati, which was a matter of worry. This indicates that community transmission may have started in Assam. Total number of confirmed cases have surged past 3,000. तो ये जो रिसेंटली 13 पॉजिटिव केसेस मिला है असम में, उसके बाद हेल्थ मिनिस्टर हिमंत विश्व शर्मा बोल रहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ वरी, और ऐसा लगता है कि असम में शायद कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुका है. नाउ ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है क्या? कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब हम लोग अभी कोई भी एक पॉजिटिव केस अगर हमको मिलता है तो उसके शरीर में कैसे वो वायरस आया, वो सोर्स को या वो ओरिजिन को हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं. पहले कैसा होता था, एक पर्सन को मतलब हम लोग को पॉजिटिव मिल गया, राइट, एक पॉजिटिव पेशेंट हमको मिल गया. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है कि उनका क्या ट्रैवल हिस्ट्री था, वो किन किन लोगों के कांटेक्ट में रिसेंटली आए थे. सपोज़ उनका कोई ट्रैवल हिस्ट्री था नहीं, तो वो रिसेंटली जो जो लोगों के कांटेक्ट में आए थे उन लोगों का सैंपल कलेक्ट किया जाता है और टेस्ट किया जाता है. सपोज़ उसी में से एक पर्सन का ये सेकंड पर्सन का सपोज़ पॉजिटिव आ गया, तो हम लोगों को पता चल गया कि ये जो सेकंड पर्सन है उसी से ये वायरस फर्स्ट पर्सन में ट्रांसमिट हो रहा था. उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगा कि ये जो सेकंड पर्सन है इसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री था क्या, या ये किन किन लोगों के कांटेक्ट में आए थे. सपोज़ ये इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये जो सेकंड पर्सन है ही हैड अ ट्रैवल हिस्ट्री, वो कोई एक इन्फेक्टेड एरिया से ट्रैवल करके आया था, राइट. इंडिया से बाहर कोई एक इन्फेक्टेड एरिया में वो गया था और वहाँ से वो ट्रैवल करके आया था. तो यहाँ पे अभी ये जो फर्स्ट पर्सन है उसके शरीर में कहाँ से आया इसका सोर्स हमको मिल गया है, राइट. तो फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट पर्सन है सपोज़ वो असम में रहता है, तो हमको पता चल गया कि ये जो इनके शरीर में जो ये वायरस आया है, जो पॉजिटिव हमको मिला है, that is mainly because he came in contact with a person who had a travel history, right, who came from an infected area. तो असम में ये वायरस स्प्रेड नहीं हो रहा है कम्युनिटी में. लेकिन अभी कैसा हो रहा है कि एक पॉजिटिव केस हमको मिल गया, उसका कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, और रिसेंटली वो जिन जिन लोगों के कांटेक्ट में आए थे उन लोगों का सैंपल टेस्ट किया जा चुका है और उसमें भी कोई पॉजिटिव केस हम लोगों को नहीं मिल रहा है. दैट मीन्स व्हाट, अभी ये जो पॉजिटिव केस हमको मिल रहा है इसके शरीर में कहाँ से वो वायरस आया हम लोग ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, राइट. इसका मतलब है अभी कम्युनिटी स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया है. मतलब अभी हम लोग ट्रेस नहीं कर पाएंगे, ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब ये कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है मतलब कहीं से भी आपके शरीर में वो वायरस आ सकता है, राइट. सो कम्युनिटी ट्रांसमिशन अकॉर्डिंग टू दिस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम तब हम लोग बोल सकते हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुका है जब ज़्यादातर केसेस में हम लोग जो ओरिजिन है, जो सोर्स है, उसको हम लोग ट्रेस नहीं कर पाते हैं, राइट. हालांकि अभी तक बोल रहे थे कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन हालांकि ये रिसेंटली जो 13 पॉजिटिव केसेस हम लोगों को मिला है उससे ये डाउट किया जा रहा है कि शायद कम्युनिटी ट्रांसमिशन हैव स्टार्टेड इन असम. Now let us have a look at the most probable topics for UPSC PT 2020. First topic is Defense Innovation Organization. So Defense Innovation Organization is a not-for-profit company under Section 8 of the Companies Act 2013. The scheme of Defense Innovation Fund is implemented through the Defense Innovation Organization. It is funded by two defense public sector undertakings, namely Hindustan Aeronautics Limited and Bharat Electronics Limited. इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है. If you want, you can attempt this question. The next topic number 432 is Injeti Srinivas Committee. The high-level committee on CSR was constituted in October 2018 under the chairmanship of Injeti Srinivas, Secretary Corporate Affairs, right? CSR आप लोग जानते ही होंगे, Corporate Social Responsibility,
राइट। तो ये जो कमिटी है, ये कमिटी के जो रिकमेंडेशंस है, फर्स्ट, मेकिंग CSR एक्सपेंडिचर टैक्स डिडक्टिबल, राइट, दैट मीन्स एक्सपेंसेस टुवर्ड्स CSR शुड बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन इन द कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, राइट। देन प्रोविजन टू कैरी फॉरवर्ड unspent balance for a period of 3 to 5 years, balancing local area preferences with national priorities, aligning Schedule 7 with the Sustainable Development Goals by adopting an SDG plus framework. Violation of CSR compliance may be made a civil offense and shifted to the penalty, right? So these are some of the major recommendations of the Injeti Srinivas Committee. Next topic, topic 433, funds of CSR. The Ministry of Corporate Affairs announced that funds spent on measures to tackle the COVID-19 outbreak will be counted towards the corporate social responsibility activity of companies, right? जो measures लिया जाएगा to tackle COVID-19, वो measures को CSR activities के अंदर consider किया जाएगा. इसके अलावा other activities included under CSR are eradicating extreme hunger and poverty, promotion of education, promoting gender equality and empowering women, reducing child mortality, improving maternal health, combating human immunodeficiency virus, acquired immune deficiency syndrome, malaria and other diseases, ensuring environmental sustainability, employment enhancing vocational skills, social business projects, contribution to the Prime Minister's National Relief Fund, right? So these activities are included under corporate social responsibility. So we have given one question for each of these three topics. You can answer these questions in the comment section, and we will give the answers to these questions in our tomorrow's newspaper analysis, right? And the solution of the questions asked in yesterday's newspaper analysis are given here, right? So this is all for today. Thank you.